Welcome to Kanooni Charcha. Today I will have a Kanooni Charcha with regard to a very important matter of criminal jurisprudence. Okay, with regard to sentencing part, conviction and then sentencing. So then I start from 393, language and contents of judgment. My concern is I will directly go to the subsection 3. This is related to one of the punishment, and it is a capital punishment, death penalty. You will find section 6 of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. There are different types of punishments. The punishments are one addition is made, that is with regard to community services. The punishment provided are death, life, this imprisonment, regress or simple. This is a forfeiture of the property and fine. And now one more is added, that is community service. I am not I am concerned too with about death penalty. In which cases, what are the matters, and when the court of session particular chooses to punish a accused after his conviction for death penalty, with death penalty, you will say. Now, the section 393 subsection 4 is very relevant to how when the conviction is, I am reading this section now, 393 subsection 4 of BNSS 2023. When the conviction is for an offence punishable with imprisonment for a term of 1 or more years. No, this is 4 is something else. I'm going to subsection 3. When the conviction is for an offence punishable with death or in alternative with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reason for sentence awarded. This is the reason are to be recorded. In every case, if there is a death penalty, death sentence, life imprisonment or imprisonment for a term of years, if it is in years, even 1 year, 2 years, 3 years, 4, shall state the reason for sentence awarded and the quantum of sentence. Why the accused is being sentenced to death penalty, life imprisonment or the term of the particular number of years. Now, I am concerned today with and in case of sentence of death, this is particular. The special reason for such sentence should be got mentioned. This is the special reason. This is the special reason for such sentence is very important. In case the law is evolved, you will find that there are many Supreme Court judgments on the subject, that when the death sentence is to be given, many cases are there, judgments of the Supreme Court. Then what are the cases? Nature of the cases, nature of the crime, nature of the manner, the commission of how a particular offence is committed. This is what was now the case, Bachan Singh's case, theory of doctrine of rarest of rare case has evolved from this judgment. Now, while appreciating rarest of the rare case, what is required to be bugged out, explored? That is the manner of commission of the murder.
You know how the murder is. If a murder is committed by having brutal, barbaric mode, then obviously this is a aggravating this circumstance, you may say, factor which is to be motive for commission of an offence. Sometimes this is with the manner of commission. Sometimes the body parts, in order to avoid the detection of the crime, is chopped. The body is burnt. This is such type of cases when there are more victims of this crime of this when there is a murder, wherein many life has been taken. This many victims of this murder. There are 14 people, sometimes then 5 people have been killed, murdered, and if there is an innocent, the child, there is a murder of a child, who there is a vulnerable community of the society, women, you may say, after rape, you may convict this murder the accused after rape. If there is a rape with murder, such type of cases also you will find rarest of the rare cases. This anti-social and this nature of the crime, this is also comes in this rarest of the rare cases. The magnitude of the crime, how the crime is committed, and sometimes anti-social the crime committed, where the people of this SC, ST community are murdered. And this is also this personality of victim, this child, women, I have already mentioned. Social and sometimes is very important, social personality. This political personality is murdered. There is a political rivalry, you may say, which affects this constitutional and democratic is such type of killing. These also comes under rarest of the rare cases. Now, while appreciating in the rarest of the rare case, तो उस वक्त रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को वर्कआउट करने के लिए 2 किस्म के देखें, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व्ड इन पर्टिकुलर केस, और हम कई बार क्या करते हैं, देखते हैं एग्रावेट, ठीक, क्या इसमें एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, दोनों को कंपेयर करके, कंपैरिजन करके, जो ओवरवे करे, अगर ओवरवे करेगा मिटिगेटिंग, देन द सेंटेंस, द केस मे नॉट फॉल इन रेयरेस्ट ऑफ द केस, उसमें हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी देते हैं। अगर एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंस जो हमने रेफर किया है, मैनर ऑफ द मर्डर, कैसे मर्डर किया है और किस किस्म के, किसको किया है, जैसे बॉडी पार्ट ही चॉप कर दिए, बॉडी ब्लंट ही कर दी, सिर्फ जो साक्ष्य, जो एविडेंस है उसको छुपाने के लिए, ये सारा क्राइम तो और भी है। जैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो कुछ लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, उनको कोई लेना देना नहीं, दे लिव्स ऑन क्राइम। आपने किसी को भी मर्डर करवाना, सुपारी लेके, सुपारी किलर्स जो थे तो वो मर्डर कर देते, वो भी केस जनरल स्पीकिंग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है। तो उसमें भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसमें आया गया। तो बचन सिंह में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डॉक्ट्रिन डेवलप हुई, और साथ ही मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंस नॉट टू डू वर्कआउट, एक्सप्लोर करना है कि भाई ये बनता है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो ये सारा उसमें है। तो आपने ये काफ़ी केस हैं, जैसे बचन सिंह है, मच्छी सिंह है, और भी काफ़ी लोग हैं। तो कई मर्डर जो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस के लिए देखते हैं, तो उसमें आप प्री प्लान मर्डर होता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, जहाँ कोई प्रोवोकेशन नहीं होती है दूसरी साइड से, फिर भी मर्डर करते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई हेल्पलेस लोग होते हैं, कोई ओल्ड पर्सन हैं, उनको जो आप कहीं लूट पाट का मामला है तो उसमें मर्डर होता है,
ये जो शॉकिंग कंसाइंस करता है जो सोसाइटी की इस किस्म के हैं। जैसे आप लिख दो जो ये केस था नरवाया का, दिल्ली जो रेप और मर्डर केस था, उसमें क्या था, विनेश शर्मा जो एक एक्यूज था जिसको आप ये डेथ पेनल्टी वाज इम्पोज्ड एंड ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। तो उसमें क्या था, उसमें आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ही इंसर्टेड दिस आयरन रॉड in the private part of the victim. This type of cases, ये तो ब्रूटलनेस है, एनिमल इंस्टिक्ट वर्क करता है उन लोगों में जो अक्यूज है। इन अक्यूज को अगर आप सोसाइटी में रखोगे तो लॉजिक क्या है, अगर रखोगे तो ये रिपीट करेंगे, ये क्योंकि दे लिव इन, और इनका माइंड सेट, और ये कोई साइकिक और साइकेट्रिक इनको को है कि इन्होंने कहीं आपको यू माइट हैव नोटेड सीरियल किलर, वो आपने जे भी आपने वो केस देखे होंगे इस किस्म के भी, यहाँ सीरियल किलिंग है। तो ये काफ़ी केस बनाना चाहते हैं। उसमें क्या करते हैं, वीमेन फोक को एक वो बनाते हैं, टूल बनाते हैं, और वो विक्टिम होती है उसका रिवेंज का, तो वो भी है। कुछ केस में आपको ये भी मिलेगा, ये एक हॉनर किलिंग है, ये भी आपको कोई केस मिलेंगे जिनमें हॉनर किलिंग है और पूरा प्लान मर्डर है। तो जब भी 10 अक्टूबर को एक डे सेलिब्रेट करते हैं, और 2003 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ दिस डेथ पेनल्टी, एक ये भी डे सेलिब्रेट। और क्यों जो इसके खिलाफ हैं डेथ पेनल्टी के, वो एक सेलिब्रेट करते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में ये एक बड़ा एक आप उन्होंने कहा कि स्टेट सैंक्शनड किलिंग है, मर्डर है, और जुडिशियल होमिसाइड है मीन। तो ये इस किस्म के एक नरेटिव्स सेट किए जाते हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो कुछ लोगों ने ये भी एक जो आया है, सजेशन आई है, और आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको मिल जाएगी जो अवॉल्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो इसका हैंग टिल डेथ, जो जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, जो आपको एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस है, तो उसमें क्या है, तो उसमें बड़ी पेन है, बड़ा हार्ड है। तो उसमें आप अल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट एग्री। तो उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक्यूशन आप कर दो, ये गैस चैम्बर इन्वॉल्व कर दो, लेथिल इंजेक्शन दे दो, ये सारा ये, तो ये मृत्यु दंड जो इसकी बात की है। तो एक ये हमारा जो अभी इंडिया में और काफ़ी कंट्रीज है, यूएस भी है वहाँ, और चाइना में, ये जो मेन 3 जो हैवली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जिसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसमें ये जिस जो डेथ पेनल्टी है ये स्टिल इट इज़ कंटिन्यू, कोई अबॉलिशन। हाँ, कुछ कंट्रीज में, काफ़ी वर्ल्ड की कंट्रीज में कुछ कंट्री ने अबॉलिश भी किया है, लेकिन अभी तक ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का भी एक असेल किया गया कि ये जो डेथ पेनल्टी है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक गोल्डन ट्राइंगल भी हम 3 ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये वायलेटिव है। और इसके जो रेफरेंस जजमेंट्स आए जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी असेल की गई, वो पनिशमेंट भी जो कन्विक्शन और फैक्चुअल भी गया था, और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी उसमें थे, और कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी भी की थी। वो आपको जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का केस है, और अरजिंद्रा प्रसाद वर्सेस स्टेट ये 1979 का केस है। बचन सिंह है, ये मिठू सिंह है, ये दोनों स्टेट, जो बचन सिंह है ये स्टेट ऑफ पंजाब का है, और जो मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये भी पंजाब का है। ये चन्नू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, और फिर विक्रम सिंह ये जो केस है स्टेट ऑफ पंजाब ये 2015 का है। ये सारे केसेस में, और अभी ये 2019 का है मोहम्मद कासम वर्सेस स्टेट ऑफ ये महाराष्ट्र। तो ये सारे केसेस हैं, इनमें ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रेज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको वैलिड करार दिया,
उन्होंने कहा कि ये एक ड्यू कोर्स प्रोसेस है। आर्टिकल 21 जो है उसमें है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ लेनी है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन्वॉल्व, जो मेनका गांधी के केस में बताओ, और एक गोपालन तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था। तो उसमें जब सवाल हुआ तो एक में तो उन्होंने कहा कि जो प्रोवाइड है, ये सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जे इम्पोजिंग ऑफ डेथ पेनल्टी, जो मैंने कहा सेक्शन 6 ऑफ जो BNS है, जो पहले जो भारतीय न्याय संहिता में, और जो 53 था, इसको उन्होंने वैलिड इन जो जजमेंट्स में, और अभी तक ये पेनल्टी सर्वाइव करती है, डेथ पेनल्टी। तो ये एक और प्रोविजन है इसमें कि ये डेथ पेनल्टी अगर इम्पोज कर दी कोर्ट ऑफ सेशन ने, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कोर्ट ऑफ जो आप कंफर्मेशन को जहां अक्यूज अपील करता है, जब कन्विक्शन अपील, तो उसमें जो कंफर्म ना करें, जो सेशन जज ने सेंटेंस दी है, तो उसमें वो सेक्शन आई थिंक ये आपकी आ गई, ये 409 जो BNS की है, ये कहती है कि तब तक आप इसको, ये चैप्टर 30 है, और ये उसमें करती है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ही इज बाउंड अंडर सेक्शन 407 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन बिफोर द सेशन जज। अगर सेंटेंस डेथ देगा तो उसकी तब तक लागू नहीं होगी जब तक वो जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट कंसर्न, वो कंफर्म नहीं करेगा इन्हें। तो एक इसके साथ ही है जो सेक्शन 409 है, ये है पावर ऑफ द कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। तो ये कंफर्म भी कर सकता है और इसको जो कन्विक्शन हुई है उसको सेट असाइड अनल भी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जो ये हैं, तो इसमें ये डेथ सेंटेंस, थोड़ा मैं इसको और कर दूंगा, डेथ सेंटेंस जो मैनर है, हैंग टिल डेथ, ये भी एक प्रोसीजर BNSS और जो अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में आपको कि हैंगिंग टिल डेथ, तो ये भी एक प्रोसीजर है हाउ वो दैट स्टिल सर्वाइव। और दूसरा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मैं थोड़ा और कर दूंगा, मैंने चाहता था कि मैं डेथ पेनल्टी तक, लेकिन थोड़ा सा लोगों में जो एक कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है सोच में, तो कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोई इंप्रेशन है कि 14 ईयर्स होती है, जहाँ कुछ ऐसा है तो लाइफ है, उस स्पेसिफिक सेक्शन में लिखा है नेचुरल लाइफ ऑफ द, जो मैंने सेक्शन 6 रेफर की है, उसमें स्पेसिफिक लिखा है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना दूंगा अपने दर्शकों के लिए। तो ये सेक्शन 6 और इसका B, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज टू से इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर of person's natural life. This is natural. However, the appropriate government, the concerned government, can commute the death sentence as well as life imprisonment. If life imprisonment case is made out for commuting of life imprisonment, to punishment it should not exceed 14 years, not above than 14 years. Government उसको ये 14 ईयर्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो जो जज साहब ने सजा दी सेशन कोर्ट ने, और अगर कंफर्म हुई जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दी, जो डेथ पेनल्टी थी वो अलग है। अगर ये सेशन जज ने लाइफ में दी तो लाइफ मीन नेचुरल लाइफ, ये कर सकता है हाई कोर्ट, और उसको अनल भी कर सकता है। ये जो है डेथ पेनल्टी का। तो मुझे लगता है जी आज के लिए काफ़ी है। तो मुझे दीजिए इजाजत, दोबारा आई विल कम विद न्यू टॉपिक, न्यू एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।